So let's continue the concept of magnetic field. मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में जो बात बताई थी दैट इज मैं एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं. जस्ट इमेजिन अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. This is a region having uniform magnetic field B, and that magnetic field B have got direction into the board. मैंने क्रॉस बनाए हैं. This is the region. Now, if we have got any charged particle in this magnetic field, यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कोई चार्ज पार्टिकल ले लूं, this is a charged particle having a charge of plus q. If this charged particle remains stationary, there won't be any force on the particle, while if this charged particle is given velocity v in this direction, then this charged particle would experience a force, and that force in magnetic field is termed as magnetic force. It's expressed as Q into V cross B, or that magnetic force would be Q into mod V into mod B into sin theta into n cap. Magnitude of force is Q into V into B into sin theta, and this force vector is parallel to n cap. It's perpendicular to velocity vector, and it's perpendicular to field vector. This magnetic force, which is parallel to n cap, is perpendicular to field vector. यहां तक मैंने बताया था. कैप की डायरेक्शन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट वी यूज राइट हैंड थंब रूल. हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को वेलोसिटी वेक्टर की तरफ ले जाते हुए फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाते हैं. वेलोसिटी वेक्टर की तरफ ले जाते हुए फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाते हैं. ऐसे केस में जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होता है. ना from this article, let's conceptualize the concept of let's conceptualize magnetic field. हम magnetic field को क्यों ना सबसे पहले conceptualize करें. From here, magnetic field would be magnetic force upon Q into V into sin theta. मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का प्रयास करूंगा. सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका यूनिट, इसके अलग अलग सिस्टम में यूनिट, उनके बीच में रिलेशनशिप, सबसे मैग्नेटिक फील्ड को लेकर मैं यह प्रयास करता हूं. सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mLT टू द पावर -2. चार्ज इज करंट इनटू टाइम. चार्ज इज करंट इनटू टाइम. करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी.
और वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT टू द पावर माइनस 1। साइन थीटा के लिए द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा इज 0। दिस वुड गिव मी द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। L से L कैंसिल होता हुआ दिखा है मुझको, जल्दी देख लीजिए, L से L कैंसिल, T टू द पावर माइनस 1 कैंसिल्ड, और B का डायमेंशन फॉर्मूला इज M A टू द पावर माइनस 1 T टू द पावर माइनस 2। This is dimension formula for magnetic field. Its unit in SI system. B के लिए मैं लिखूंगा force would be in Newton. Charge is ampere second, and velocity is meter per second. Or magnetic field would be Newton पर मीटर पर एम्पियर। देखिए, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, इट्स द SI unit of B is न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और दिस न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर is also equal to Weber per meter square. In fact, its magnetic field is also defined as magnetic flux density, means magnetic flux passing through unit area. It would be also Weber per meter square. The magnetic flux, its unit is Weber, and magnetic flux per unit area would be Weber per meter square. Or in the honor of scientist named Tesla, the unit of magnetic flux is also called 1 Tesla. So 1 Tesla, which is SI unit of B, is also equal to 1 Weber per meter square. It's also equal to 1 Newton per ampere per meter. This is SI unit of magnetic flux, while its CGS unit is CGS unit of B is Gauss. One Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. One Tesla is always equal to 10 to the power 4 Gauss. Although, let me tell you, this Tesla is a large unit of magnetic field. Practically, हमारे आसपास कभी भी 1 टेस्ला जैसी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं होती है। इनफैक्ट, लेट मी इन्फॉर्म यू, यह 1 टेस्ला तो इतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड है कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि हमारे आसपास हो जाए, हम पागल हो जाएंगे। यदि हमारे दिमाग के आसपास
1 टेस्ला जितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, यू डेफिनेटली गेट इंसेन। ये इतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इतना अधिक इफेक्ट कर सकती है ह्यूमन बॉडी को कि आप पागल हो जाओगे यदि इतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। जो हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ जनरली B is in the range 10 to the power minus 4 टेस्ला। इस रेंज में मैग्नेटिक फील्ड होती है और आप इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रैक्टिकली काम करते हैं। ऑब्जर्व ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस B is also termed as मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं। इट्स ऑल सेम। इसका सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करा गया है, बड़े ध्यान से देखिए, और इसी बेसिक कंसेप्ट से आप इसका बेसिक ऐसा यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इट्स ऑल्सो 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, इट्स ऑल्सो 1 टेस्ला। यू नीड टू नो ऑल द यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन per meter ampere, and its CGS unit is Gauss, and that Gauss is 10 to the power 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss। अब मैं कंसेप्ट और बताता हूं, देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है और इस समय हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यदि कोई सा भी चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो यह चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना लेता है, जिस रीजन में कोई सा भी दूसरा चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगने लगेगा, उस पर इफेक्ट महसूस होने लगेगा। वो चार्ज पार्टिकल किसी भी स्थिति में हो, वह चाहे फिक्स हो चाहे वह स्टेशनरी हो। इस तरह से अपने से रेडियली आउटवर्ड इस तरह से यह एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ले रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी यूज्ड टू से यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, दे आर द ओपन कर्व। दे स्टार्ट फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल एंड दे गोस अप टू इंफिनिटी। यदि डायपोल होएगा तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड करते हैं। दे आर ओपन कर्व, ये ओपन कर्व। इसमें कोई सा भी दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाए, इवन यह चार्ज यदि स्टेशनरी भी होगा तो इस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q into E, a well known concept to you। हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा। यदि हम कोई बार मैग्नेट ले लें तो उसकी वजह से प्योर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। If this is a bar magnet,
यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, पार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स रेडिएट होती है, और यह जो मैग्नेटिक लाइंस है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल तक जाती है इस तरह से। और अब although this is a region with non-uniform magnetic field, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल कर रही है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने इधर कहीं चार्ज पार्टिकल रख दिया, यदि यह चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो इस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मगर यदि यह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे तो इस पर फोर्स लगने लगेगा, और इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इंस्टेंटेनियसली हम बताते हैं V क्रॉस B इनटू द बोर्ड, फोर्स वेक्टर वुड बी इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। अब हम एक करंट कैरिंग वायर को देखते हैं। दिस इज अ वायर कैरिंग करंट I इन इट। यह एक वायर है और इसमें यह I करंट है, और इस वायर के पास में यह एक चार्ज पार्टिकल है, और यह चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस वायर के पास में मूव करने लगा। नाउ दिस इज द सिचुएशन, और इसी सिचुएशन से हमने इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर करा। मैं इसी सिचुएशन को दोबारा एनालाइज कर रहा हूं। देखिए, मैं इस करंट, इस मूविंग चार्ज को दो रेफरेंस से ऑब्जर्व करता हूं। मैं दो ऑब्जर्वर्स डिफाइन कर रहा हूं, दो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं। उन दोनों ऑब्जर्वर के थ्रू हम इस चार्ज को देखेंगे। एक ऑब्जर्वर तो मैं, यह ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी है, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज स्टेशनरी ऑब्जर्वर। Let us say this is reference S1, और एक दूसरा ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर is moving with the same velocity v in the same direction as this charge particle is moving. This is observer, moving observer with velocity v. Let us say this is observer S2. सबसे पहली बात, are the two observer inertial or non-inertial? यह ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ऑब्जर्वर 1
इट्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर 2 S2, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सबसे पहले हम इस बात को सोचें। लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। Inertial reference frame means any reference frame which is unaccelerated. A non-accelerated reference frame is termed as inertial reference frame, while any reference frame which itself is accelerated is termed as non-inertial reference. यदि reference frame accelerated है तो उसे आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, और यदि रेफरेंस फ्रेम अनएक्सीलरेटेड है तो उसे आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। एक्सीलरेशन किसी भी तरह से हो रहा, यदि ऑब्जर्वर का, यदि रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन हो रहा है तो वह नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। क्या S1 और S2 एक्सीलरेटेड है? नहीं, यह तो बिल्कुल स्टेशनरी दिख ही रहा है, और यह ऑब्जर्वर भले ही मूव कर रहा है मगर कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है। मूविंग ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी v and that is constant. Velocity is constant, it's non-accelerated, and if it is non-accelerated, it's never non-inertial. Both the reference frame are inertial reference frame. यदि रेफरेंस फ्रेम स्टेशनरी है तब तो इनर्शियल कहलाता ही है, और यदि रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी वह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही कहलाता है। मैं कहता हूं S1 एंड S2 बोथ आर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बोथ ऑफ देम आर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब वाकई में इस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह से होएगा? जब यह चार्ज पार्टिकल, हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होगी। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इनटू द बोर्ड होगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर को हमने राइट हैंड से होल्ड करा। राइट हैंड से होल्ड करते समय अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा। अंगूठे को जब हम करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं, सीधे हाथ से इसको होल्ड कर रहे हैं और अपनी उंगलियों के डायरेक्शन को देख रहे हैं। उंगलियों का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। यदि वहां इनटू द बोर्ड है, इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में है? उसके लिए वंस अगेन राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, फोर्स इस तरफ। इनफैक्ट इस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट इस तरह से होगी। दिस वुड बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब हम जरा सोचें, स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा? स्टेशनरी ऑब्जर्वर S1 वह क्या ऑब्जर्व करेगा? उस ऑब्जर्व करके वो क्या कहेगा? स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए चार्ज Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी से मूव करते हुए चार्ज पर फोर्स उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है।
और फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने की वजह से वह फोर्स के अलोंग एक्सीलरेट हो रहा है और फोर्स के अलोंग एक्सीलरेट होते हुए वह इस तरह की कर्विलिनियर ट्रेजेक्टरी में जा रहा है इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर की। इसके पहले जो भी कुछ हमने ऑब्जर्व करा था वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए करा था, वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। फॉर दिस स्टेशनरी ऑब्जर्वर दिस करंट कैरिंग वायर इज जनरेटिंग सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वह कर्वीलिनियर पाथ में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर S1 करंट कैरिंग वायर इज जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। According to S1, there is magnetic field due to current carrying wire. अब जरा सोचिए, सोर्स S2 जब ऑब्जर्व करेगा तो वो जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहा है उसको देखकर क्या कहेगा? सोर्स S2 जो कि चार्ज के साथ में चार्ज की ही वेलोसिटी से चार्ज के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चार्ज की वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है, सेम मैग्नीट्यूड same direction. According to source S2, charge Q is stationary. According to source S2, according to observer S2, charge Q is stationary. और यह स्टेशनरी चार्ज उसे करंट कैरिंग वायर की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, अपने से दूर जाता हुआ दिख रहा है, करंट कैरिंग वायर की तरफ एक्सीलरेट होता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्स S2, एक स्टेशनरी चार्ज पर करंट कैरिंग वायर की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। स्टेशनरी चार्ज पर यदि स्टेशनरी चार्ज एक्सीलरेट होने लगे, स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स दिखने लगे, इसका मतलब की है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर S2, इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज toward the wire in this situation, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ यह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस कर रहा है और उस फोर्स की वजह से वह एक्सीलरेट भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्स S2, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to current carrying wire. करंट कैरिंग वायर की वजह से करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन फैक्ट दे आर द सेम एंटिटी। यह एक ही चीज है, दे जस्ट डिफर इन द रेफरेंस फ्रेम। यदि इस रेफरेंस फ्रेम से हम ऑब्जर्व करें
तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, और यदि इस रेफरेंस फ्रेम से हम ऑब्जर्व करें तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर की वजह से। और यदि हम कोई तीसरा ऑब्जर्वर वहां पर रख दें जिसकी वेलोसिटी v डैश हो, which is not equal to v, not equal to 0, यदि हम कोई तीसरा ऑब्जर्वर खड़ा कर दें और इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश कर दें, थर्ड ऑब्जर्वर S3, इसकी वेलोसिटी ना तो 0 है स्टेशनरी के माफिक और ना ही v है, कुछ अलग है। अब इस ऑब्जर्वर के लिए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना और मैग्नेटिक फील्ड भी होना, वी यूज टू कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर S3, whose velocity is v dash is neither equal to 0 and v dash is nor equal to v. There is electromagnetic field due to current carrying wire. हम कहते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मींस द फील्ड which have some component of electric field and some component of magnetic field, और उसमें से कौन सी फील्ड डोमिनेट करेगी यह पूरी तरह से ऑब्जर्वर पर, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए वहां पर पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। एक ऑब्जर्वर जो चार्ज के साथ ही मूव करेगा, इसके लिए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, और बाकी किसी भी ऑब्जर्वर के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही दिखेंगी, और ऐसी फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हम कहते हैं नॉट ओनली the current carrying wire but also any moving charge। एक स्टेशनरी चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मगर यदि एक चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे, यह चार्ज पार्टिकल यदि मूव करने लगे किसी वेलोसिटी से, मूविंग चार्ज पार्टिकल जनरेट electromagnetic field around it. Moving charge generate electromagnetic field around it. इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से होती ही है, और यदि वो मूव होने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है वहां पर। ऐसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ध्यान से इस कंसेप्ट को देखिए। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बड़ा डिटेल में फर्दर हम समझेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से इसका प्रभाव होता है अलग अलग डिवाइसेस पर, अलग अलग चार्ज पर या करंट कैरिंग एलिमेंट पर। बड़े डिटेल में आगे हमें इस बात को समझना है। अभी सिर्फ एक बात इधर नोट कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक ही बात है, सिर्फ देखने का फर्क है। अलग अलग पर्सन
अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कोई इसे प्योर मैग्नेटिक फील्ड देखेगा, कोई इसे प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखेगा। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड कम दिखाई देगा। यदि आपकी वेलोसिटी इस v के करीब है मगर v से हल्का सा डिफरेंस है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम दिखेगा। और यदि आपकी वेलोसिटी v से तो दूर है मगर 0 के करीब है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखेगा। मींस वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखेगी और कौन सी फील्ड ज्यादा दिख रही है, कौन सी फील्ड कम दिख रही है, ये पूरी तरह से रेफरेंस फ्रेम, स्टेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। ध्यान रहे, इधर हमने जो भी रेफरेंस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ऑल दोस रेफरेंस फ्रेम आर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मींस नॉन एक्सीलरेटेड रेफरेंस। मतलब रेफरेंस फ्रेम हमने सारे एक जैसे ही लिए, रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेटेड कोई से भी नहीं। अब मैं आगे समझाता हूं।